द्वारा उठाया गया है कि नेशनल लेवल पे कुछ प्लेयर्स जिनका कि टेस्ट नेगेटिव था, जब वो वर्ल्ड लेवल के उसमें गए तो उनका पॉजिटिव हो गया और उनको एक बहुत ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। मेरे कुछ साथियों ने हरियाणा के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बताया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हरियाणा और केरल बहुत आगे है, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष पिछले लगभग 2 वर्षों में काफ़ी काम हुआ है और मेरठ में हमारे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे शुरू की गई है और जो पिछले बार जो खिलाड़ी हमारे जीत के आए उनको लगभग 4-4 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। मैं एक चीज़ और आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे एक आम आदमी पार्टी ने, सर ओनली आई विल टेक 1 मिनट, बहुत फक्र के साथ ये कहा कि साहब हरभजन सिंह जी हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं जो गुगली फेंकते थे। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पहला ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और राजस्थान से आता है, फौज से आता है। आप समय की बाध्यता है, मैं केवल कुछ बजट पे भी लोगों ने कहा था, निश्चित रूप से स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि आज तक जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बजट दिया था स्पोर्ट्स के लिए उसको काफ़ी अधिक बढ़ाया गया है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अनिल। श्रीमती मौसम नूर, डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. Sir, as I stand here to speak on this subject, I am very proud to be speaking about a sector which is very close to my leader, Honorable Chief Minister of Odisha, Naveen Patnaik. The entire House, and I am sure the Honorable Minister, would join me in recognizing the kind of impetus he has given to hockey in this country. After 41 years, India got a medal in the Olympics because of the impetus that was given to hockey by adopting that particular sport by the state government for 10 years. And now the same kind of fillip is being given to other sports like football, like women's sports, several other sports. So it's very close to the heart of our state, and when people applaud the medal tally of, let us say, Haryana and Kerala, people forget that this is the new kind of incentive and incentivization that is required to be provided to sports in India. We have 17 AstroTurf being developed in the 17 blocks of Sundargarh district, because that's considered as the cradle of hockey in the entire country. This is the kind of incentive we have to do for, both in the infrastructure side and for sportsmen. Now, before I come to this topic, I must compliment the Minister that what he has brought to the House currently is something which is not only timely, but it would actually pitch India at a level higher than countries like Russia, countries like Italy, who are now topping in the world in terms of doping activities. We were inching closer to them. So this is a structure which has come in to make us more credible in the international sports arena, and therefore I support the bill. I compliment the Minister for bringing this bill. Before I get into some of the details which will come by way of suggestions, I would first make a broad comment about the design of this bill. And I would strongly urge the Honourable Minister to consider this. One of the most important aspects of this bill is the anti-doping testing laboratories. And they are listed under Chapter 7, Miscellaneous, Section 26 and Section 26(1)(2) and Section 27. Don't you think that this is the crux of the entire thing, because our national laboratory was de-recognized, and therefore this should actually find place of prominence as a prominent chapter otherwise in the entire design of the bill. And you could consider asking your ministry to look at this, because otherwise it doesn't give the preeminence that is required to be given to such laboratories.
I will come to another point relating to the design of the bill once again, and that is the provision relating to the appeals panel, which says that the panel will consist of chairperson, a retired High Court judge, and a vice chairperson, a legal expert, and 4 members, medical practitioners. Now, there is a reference to medical practitioners in the entire bill. The point is, who is a medical practitioner? It's a very broad field. I think sports doctors or sports medicine, those who practice that should be categorically mentioned here, and those are the people who should be coming in here. Secondly, I have statistics, and it is very glaring that the International Journal of Pharmaceuticals, it has published in 2017 a report which says that out of 162 formulations, Ayurvedic formulations, which were tested, 16 had the presence of substance prohibited by WADA. 16 had presence of substance prohibited by WADA. Now, many of us, including our sportsmen, I take Ayurvedic medicines, I take homeopathic medicines, and we have cases here. I have a case here where the athlete said that she had taken that particular medicine thinking that it will increase her long-term immunity. Now, this is not covered in the entire provision of the Act. We cannot really cut and paste what the WADA has said. Our realities, Indian realities, are different, and that has to be factored into this particular provision. And therefore, my suggestion to the Honorable Minister is that we have the National Medical Commission, which has been set up now with 3 different verticals, one for allopathic, one for traditional medicines. If you have a representative from there in this appeals panel, then even if it is a question of having somebody taking the traditional medicines, he can evaluate it properly instead of blindly banning that particular athlete. The athlete's life is very small. Now I will come to some very concrete suggestions, sir. This is relating to awareness. Many of us have spoken about it. Many speakers before me have spoken about it. I would like to refer to one famous Cuban athlete who is the only athlete to have won the 400 meter and 800 meter Olympic in 1976. He says that you can tell your athletes, you tell your sportsmen, co-sportsmen, several things, but it is very important to have a policy for educating against doping. Awareness has not got the prominence that it is required to be given in the particular design of the Act. And this, I think, if it can be brought to the rules, I would strongly recommend that this could be done. Awareness is very important, because many of our sportsmen belong to communities or belong to families who are not that literate. So to expect them to know about the formulation of something that is being administered to them is actually very, very, tall thinking, I would say. The next point which I would like to mention is providing some kind of a legal aid to our athletes. Our athletes, if they are tested positive by various layers, then there is no, how do they meet the legal challenge? So some kind of a legal aid assistance scheme should also be worked out for our athletes. We must realize that ultimately the bill or anything that we do for sports, the primacy should be given to sportsmen and not to policymakers. And therefore everything should be done in keeping the interests of sportsmen in mind. The next point that I would like to make is relating to data protection. I think Honorable Basanji talked about it, but he said that there is no mention of it. Actually, there is a mention of it, and very strangely, the mention says that it would be made public. It is being legalized, legislated. I think that's a very retrogressive step, because until and unless the athlete has exhausted all chances, her or his name should not be disclosed to public. That is a change that I think has to be brought in. The last point that I would make with the minute that I have is relating to facilitating the therapeutic use of exemptions. I think the athletes
have to go through a series of processes which are very difficult. They would rather train rather than go for this process. I think that could be simplified, and this simplification is possible if you can have some kind of a certification that this particular formulation is dope-free. You can ask pharmaceutical companies who are giving these tablets or giving these medicines to have this certification mentioned. And I think with the kind of impetus that we are giving everywhere to sports in the country, there would be pharmaceutical companies who would go in for this. We could actually attempt to try that. Thank you, Doctor. So last minute. The point is relating to the selection process. The selection process of the Director General, many people have talked about many things, but I think the most important thing is at least a minimum qualification could be mentioned. You may not, because the government has the right to appoint, and the process of removal, it is there in all the government organizations, but minimum qualification could be mentioned so that, sports persons are not relegated to the background, as has been the allegation against Indian sports all this while. Thank you, Doctor. Thank you so much, sir. Thank you, Doctor. Now, Sri Binay Visham, 4 minutes. Nice. Thank you, sir. Sir, occasions may come, maybe rarely in the House, but the House feels to be united, the common mind, the common view. And this is such a day for us. A day that we devote our time for sports and for the values of the sports. That too is brought by a young minister. I would like to reveal it here that from the first day when I came to the House, Anurag was my close friend, even though very young to me. And we had excellent occasions where we quarreled also, we debated. We had big debates among us each other. But still I have a love to him. I believe he too have it with me. Sir, in this House we had P.T. Usha, the proud of the country. And I am very energized to say that we all knew her since so many years, since her school days. I don't know whether she remembers. I went to her house in Payoli when she was a school student, when she won the first medal in the school games. Since that days, Usha was so dear to us. Our state and our people used to call her the Payoli Express. She used to run on the beaches of Payoli. Near the house there was a beach, and there she ran early mornings of every day in those days. And that Usha has become a well-renowned person, and she has come to the Rajya Sabha as a member of the house. That too is a pride fighter. Sir, in this day, when a new bill on sports have come here, we have reasons to say that this is a moment of great hope also, because India is going ahead in the field of sports. We learned about victories, medals and all those things. I remember once a meeting with the mother of Chanu, the girl who won the medal, gold medal, recently in the Commonwealth Games. I met her mother in Imphal. From a very poor family she is. And they were working people. From that family, a daughter emerged as a national figure to win the gold medal. That also is a matter to be reckoned with. Now when we discuss about this anti-doping bill, I may refer to the fact that why this doping? Why? Sir, may not be very happy to all of us, but sports have become a big money affair. Big money affair. Rich people craving for riches, they make the sports as a stepping stone for that. And there are agencies, there are groups also to help them to win this acquiring money games like that. That also is happening. So how can we save the sports from the greed of the money? It's not very easy. And we had General Watts here.
General Watts showed us a way how to come beyond the petty party politics. Sometimes it happens here. We have politics, of course. We have to have it. And we have to be loyal to the politics also. But petty politics and politics are different. Sometimes we need some kind of a warning to us that to come out of the tendency. General Watts today did it. As a sportsman, with that spirit, he talked here. I support many of his views. I believe that the one point that he mentioned of cross-breeding, important it is. He talked about inter-caste marriages. I request the ruling government to think it seriously. Why we should oppose inter-religious marriages also. That will also help Indians to have a more efficient, more powerful young generation who can win more and more medals. So please come out of this petty considerations on such occasions. I hope that the words by General Watts may help us to come out of this kind of a narrow way of thinking. Sir, again to the bill, when I come, I find a little problem with that national boards. We talk about an agency, which is a statutory agency, which will now overtake the earlier society. That also is good. But when we come to the boards, Minister, the board is trying to become a state within the state, as he mentioned. That board has certain powers. And that powers, many a time, is crossing the powers of the agency, of the... Thank you, Binaji. And I may request the Minister, think of calling this as an authority. Instead of an agency, why can't it be called as authority? National Anti-Doping Authority. Yeah, thank you. That can be more meaningful. With these words, I conclude. Thank you, sir. Thank you very much, Binaji. Dr. Anil Jain, 5 minutes. Not here? Not present. Srimati Fangnan Konyak. Yes. Sir, first of all, at the outset, I'd like to put forth that the National Anti-Doping Bill, which was passed in the Lok Sabha on July 27th, is a well-balanced and visionary bill, and which will further enhance the spirit of sports and culture in our country. I most certainly think that this bill is a positive step in the right direction. Since 2014, India, under the dynamic and visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we have seen that the sports sector has grown by leaps and bounds, and we have seen the immense support, recognition, and the encouragement given to our sportsperson by our Prime Minister. This fact is self-evident from the various championships and medals that our country athletes have been winning. And as I speak, our athletes are doing us proud at the Commonwealth Games in Birmingham. The country hasn't seen anything quite like this. And therefore, I must state that in such a context, it is only right that India also does its part and fulfills its moral and international obligations by bringing, by obligations which will come into reality once this bill is passed in this August House. Sir, doping continues to plague countries worldwide, and especially more so in India. In fact, 5 members of this year's Commonwealth contingent failed their dope tests, which has once again highlighted the need for a more comprehensive and stringent anti-doping law in our country. In fact, India ranks 3rd in the world when it comes to doping violations as per WADA 2019 report. It is indeed a grim reminder that the need for a concerted effort to bring an end to this menace. The bill seeks to prohibit athletes, their support personnel, and also others, concerned persons such as coaches, from indulging in doping, the violation of which can lead to their result disqualification, and also including forfeiture of medals, being barred from other events, and also even result in financial sanctions. Sir, it is a well-thought and well-intended bill
for the benefit of the country. One of the reasons being that the National Anti-Doping Agency will be constituted as a statutory body which will be headed by a Director General, and NADA will be involved in planning, implementing, monitoring, as well as investigating anti-doping activities and rule violations. There will also be a National Board for Anti-Doping, the job of which is to make recommendations to the government on anti-doping regulations and also with regards to international compliances and other commitments. It will consist of a chairperson and 2 members. The board will further constitute a national anti-doping disciplinary panel which will determine the consequences of violating anti-doping rules. This panel will consist of a chairperson and 4 vice chairpersons who will all be legal experts, and 10 members who would comprise of medical practitioners and eminent athletes to add more support to the proposed anti-doping law. The board will also constitute a national anti-doping appeal panel to hear appeals and grievances against the decisions of the disciplinary panel. Might I add, sir, that transparency is also a key feature here, because this National Anti-Doping Agency will disclose information such as which concerned rule was violated and the consequences levied thereof. The National Dope Testing Lab in New Delhi will be the principal dope testing facility, and many more such facilities will also be established. Sir, I'd like to bring your kind attention that once this bill becomes an act, NADA will have powers to search, conduct raids, and seize. Currently, it does not have such powers. Sir, what this bill basically aims to do is to bring sports into the mainstream. When I say this, it means to give effect to the UNESCO International Convention Against Doping in Sports and other such international compliances. A legal framework is being provided to combat the menace of doping in India. It is high time that our country, which aspires to be in the galaxy of the great sporting nations, also has its own effective mechanism of tackling doping in sports, and National Anti-Doping Bill exactly seeks to do that. We cannot be advocating for sporting greatness while conveniently turning a blind eye to doping. It is only fair that the bill becomes a law. Only then will India be able to avoid international embarrassments such as the infamous record of having the 3rd most number of positive samples among the national anti-doping organizations of the world. And for a bill which will build capacities in anti-doping and will enable hosting of major sports events, it will protect their sportspersons' rights, and also, it will reinforce India's commitment to international obligations. It will also provide legal sanctity to and provide independent mechanism for anti-doping. India under Honorable Prime Minister Modi is not only focusing on building infrastructure, but also promoting sports as a viable, career option. With the first central university, sports university coming up in Manipur, we really feel that the country now has come to the point, and I commend Union Minister of Sports, Sri Anurag Thakur, and our government led by Honorable Prime Minister Modi ji for moving this bill for the welfare and progress of the sports person of our country. Thank you. Thank you very much, Punyak ji. Sri Ram ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय कि आपने मुझे इस नेशनल एंटी डोपिंग बिल पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमान जी, सभी वक्तागणों ने, सांसदगणों ने अपनी बात को इस पर रखा हुआ है, और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ इस खेल को लेकर कुछ उपलब्धियों के बारे में या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूं। श्रीमान जी, खेल तभी होता है जब खेल के मैदान होते हैं, या हम दूसरी शब्दों में कह दें, अगर हम लोग बैक में जाएं, 25 साल पहले जाएं, तो हमारे आसपास के गांव देहात में, कस्बों में खेल के मैदान होते थे, उनमें हम लोग खेलते थे। लेकिन धीमे धीमे जैसे हम लोग बड़े होते गए, वो सारी जगहें संकुचित हो गई। आज गांव देहात में, शहरों में खेलने की कोई जगह नहीं बची हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से बोलूँगा, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि बिल में कोई प्रावधान करके लाएं कि हर जिले में, कस्बे के अंदर खेल के मैदान या स्टेडियम और भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको भी देने का काम करें। और चूंकि मैं इसका एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा
कि देश के अंदर अभी आप सब ने कई सारे नाम सुने जो बहुत ही गरीब परिवेश से निकल करके देश में उन लोगों ने अपने नाम को रोशन किया। उसमें से आप नाम जानते हैं, हिमा दास का भी नाम जानते हैं, उसमें वंदना कटारिया का भी नाम जानते हैं हम लोग, उसमें उर्वशी सिंह का नाम जानते हैं। ये ऐसे नाम हैं जो गरीबी के प्रवेश में निकल के आए, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपना नाम रोशन किया। लेकिन ऐसे तमाम और भी बच्चे हैं जो इस देश में देश के मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं, तो उनको जरूरत है मूलभूत सुविधाओं की। इसलिए श्रीमान जी, मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कोई प्रावधान लेके आए कि हर जिले में, कस्बे में स्टेडियम, मैदान की मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। और चूंकि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 2007 से 2012 में उत्तर प्रदेश में हमारे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, और तब ग्रेटर नोएडा के अंदर इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट बनाया गया। 1,10,000 कैपेसिटी का 2,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का इंटरनेशनल लेवल का कार रेसिंग सर्किट बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। ऐसे और भी तमाम काम करने की जरूरत है श्रीमान जी। और इसमें कुछ बात आई रेगुलेटरिंग बॉडी का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो मैं श्रीमान जी अर्ज करना चाहूंगा सरकार से, मंत्री जी बैठे हुए हैं, कम से कम इसमें जो लोग अपॉइंट किए जाएं उनका कोई पीछे का खेल का बैकग्राउंड होना चाहिए। या तो ऐसे लोग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल प्लेयर रहे हों, या कोई गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज, सिल्वर लेकर आए हों। ऐसे लोगों को इस बोर्ड में अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। और यही सब बातें मैं थोड़ी सी करना चाह रहा था। और जरूरत है मोटिवेशनल पॉलिसी की और कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये चीजें अगर सरकार मुहैया कराएगी तो मेरी समझ से आज हम लोग 10 मेडल लाके आते हैं, कहीं 5 लेके आते हैं, हम लोग दूसरे कंट्रीज के बराबर नहीं खड़े हो पाते। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि अगर दूसरी कंट्रीज के लोग इतने सारे मेडल लेके आते हैं तो उसके पीछे क्या बात है। अगर हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे तो हम लोग ऐसे ही पीछे रहेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राम जी। श्रीमती मौसम नूर। Thank you, sir, for this opportunity to speak on the National Anti-Doping Bill 2022. I appreciate the Minister's attempt to deal strictly with the dangerous problem of doping and to comply with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization's International Convention against Doping in Sport. This is also timely since our country is also performing spectacularly at the Commonwealth Games. I would like to begin by congratulating the Indian contingent for their performance thus far and wishing them luck for the rest of the Games. According to the latest World Anti-Doping Agency WADA report released in 2021, India ranks 3rd in doping and has 152 cases across disciplines, only marginally below leaders Russia 167 and Italy 157. Just last week, some of our Commonwealth Games candidates were disqualified after failing routine tests for performance-enhancing drugs. We were all witness to the scandal in another country where athletes were taking these drugs with state sanction and administrative support. It is important that Indian sportspersons do not fall prey to the lure of easy wins and engage in dishonest behavior. The administrative setup of sport in the country should work to identify and nurture talent fairly and provide an environment of encouragement and guidance so young players are not led astray. The ministry's sports administrative bodies, coaches, former players and seniors all have a responsibility towards new players in this regard. For example, even before the present Commonwealth Games, members of women's cricket team were awaiting visas till the last minute. Such administrative kinks should be ironed out with domestic bodies working in tandem with the international bodies. To lead just minutes. I agree with the concerns raised by the fellow members. The bill does not make a sufficient distinction between minors and majors, and this should be addressed in the rules so as to protect impressionable minors. The panels mentioned in the bill
should be independent, and a change must be made to separate the disciplinary panel and the appeal panel, as well as to give the disciplinary and hearing panels protection from arbitrary removal by the ministry. While the government has attempted to take a holistic view of the problem and by countering it from multiple fronts via the bill, the socio-economic reasons for doping have been overlooked. Research shows that one of the major reasons behind doping is a sportsperson's desperation to register significant performances. Such performances determine the quality of the government jobs and incentives they receive after their career in sports, and therefore fuel an intense desperation to register quick wins in the shortest time possible. A limited professional shelf life combined with the unrelated and unsatisfactory desk jobs that await them post their professional careers has always been a worry for our sportspersons. The government thus must change their perspective on the careers of our athletes. Provisions must be made for better monetary support during training and career periods, as well as for the post-retirement options to them in order to curtail their desperation. Our sportsperson must be humanized. They cannot be looked at wins dispensing vending machines. Their needs and aspirations must be given the time and space they need as they strive to take our country to new heights each day. I would also like to point out that there must be provisions to prevent the harassment of players. While carrying out raids is necessary, NADA should ensure that appropriate safeguards may be implemented to protect the rights of athletes and to address the issue of privacy. This is also a need to lay down their clear guidelines on what constitutes the anti-doping rule violation. I would also insist that more dope testing laboratories should be opened, preferably at least one lab in each state, to ensure better accessibility and speedy test results. In Bengal, we have a long history of encouraging sports and sportspersons. Trained in gymnastics and wrestling as a kid, the Nobel laureate Rabindranath Tagore was a great admirer of jiu-jitsu and even invited judo instructors to teach in Shantiniketan. Our football clubs are legendary, and just last month a trophy tour for the Durand Cup was launched from Kolkata in the presence of State Minister for Youth Services and Sports. So in conclusion, I would like to commend the Ministry for bringing forward the bill to deal with this dangerous problem, and I hope it works both to prevent doping and to support and encouraging promising players. Thank you, sir. Thank you, Ms. Samnoor. Mr. Birendra Baisya. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on the bill. Sir, I must compliment Honorable Sports Minister Anurag Thakurji for bringing this bill at that time when our players were playing extremely good in the Commonwealth Games, which is organized in United Kingdom, sir. That this bill looks like a simple bill, but this is very important bill because prevent doping in the sport is the call of the hour, sir. Sir, the anti-doping bill was introduced in our country in the year 2021, sir. Bill was first introduced in Lok Sabha, sir. Sir, India anti-doping bill said provide for the Constitution and National Anti-Doping Agency for regulating the anti-doping activities in sports and give effect to United Nations Education, Scientific, Cultural Organization, International Convention against the doping in the sports, sir. India is a member of World Anti-Doping Agency, sir.
And sir, actually I am standing here to speak from my heart, sir. Sir, I was the president of Indian Weightlifting Federation. I was elected the president of Indian Weightlifting Federation, sir. And when I took the responsibility in the year 2010, sir, Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation, sir, due to the many dope positive cases, sir. Not only that, sir, International Weightlifting Federation imposed more than 3 crore rupees penalty on Indian Weightlifting Federation. Not only that, sir, when India was organized Commonwealth Games 2010 in Delhi, Indian weightlifters are not allowed to participate in Commonwealth Games in Delhi, sir. Because at that time, Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation, and we have to pay 3 crore rupees, otherwise they are not going to allow our player to take part. But sir, I must admit, with the help of the Sports Ministry of India, we work hard and we negotiate with the Anti-Doping International Weightlifting Federation, and ultimately ban imposed on Indian Weightlifting Federation, lifted by International Federation, and my players, Indian weightlifters, participate in the Delhi Commonwealth Games, and they got 2 gold medals, total 9 medals in the Delhi Commonwealth Games, sir. Sir, just I like to say, very proudly say, sir, 2010, Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation. When it was banned, it is known to Honorable Sports Minister also, I took the responsibility. And people warned me, why you are going to finish your career? This is the worst game. You cannot rectify this sport. But I'm proudly, sir, 2011, the Congress meeting of International Weightlifting Federation declared Indian Weightlifting Federation is the one of the tallest federation of the world, sir. This is the motivation. This motivation is required, sir. Sir, India performed well, sir, in the Commonwealth Games. More medals coming, sir. Not only that, sir, in the Tokyo Olympic Games, again I'm happy to say that I was the chief mission of the Indian contingent. I lead the Indian contingent in the Tokyo Olympic Games, sir. And all-time record medal India got, sir. Today, sir, today India is doing very good because, sir, one thing I tell you, sir, for the first time, India is the long ball champion, Commonwealth long ball champion, sir. Thank you, Mr. Sir, Bharat. India is today, sir, just 1 minute, sir. Sir, India is today Commonwealth table tennis champion, sir. Long them for the first time we got the medal. We got 3 gold medals in the weightlifting, sir. Many medals is coming. Why this is happening? Because, sir, we have a sports-friendly government under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi. Very good, thank you. This government totally helps all the federations, all the sports persons and sports ministry under the leadership of Anuragji doing very well. Now there is no problem for player. If player like to go expose themselves outside of the India in abroad, government is allowing them. Yes. All sports medicine, doctor, psychologist, Yes, but everybody is thank you. available with the help of motivation of the government. Yes. Under the leadership of Narendra Modi government. Very This sports, Indian sports is doing well, and I not only hope, I proudly said India will come within 3 in Commonwealth Games, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Bharat, sir. With this, sir, I support the bill. Thank you, thank you. Sri Dhananjay Bhimrao Makhadik. धन्यवाद सर, आपने मुझे द एंटी नेशनल डोपिंग बिल 2022 पर बोलने का मौका दिया। सर, राज्यसभा में ये मेरा पहला स्पीच है। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राज्य के
नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादाजी, इन सबका आभार व्यक्त करता हूं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं। हम सब जानते हैं अध्यक्ष जी, यूनेस्को ने 2005 में वाडा की स्थापना की थी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा को डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने के लिए देशों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में 2009 में नाडा की स्थापना की गई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये इसकी स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई थी। लेकिन सर, हमारे देश में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को नियमित करना, डोप प्रशिक्षण करना, किसी उल्लंघित मामले को दंडित करना, इसके लिए डोपिंग रोधी कोई कानून नहीं है। खेल संबंधी स्थायी समिति ने देखा कि इसके लिए सीधा और सरल कोई प्रावधान नहीं है। डोपिंग करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे अगर कोई सजा होती है तो अदालत में इसकी चुनौती देता है। इसके लिए उसके खुले प्रावधान हैं और इसीलिए खेल समिति विभाग ने 2020-21 में डोपिंग रोधी कानून की सिफारिश यहाँ पे की है। सर, यह कानून लाने की वजह क्या है? हमारे देश में खेल का और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है और यह बिल इसे और मजबूत करेगा। इस खेल के खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए, इनके कल्याण करने के लिए यह बिल लाया गया है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैंने अभी कहा कि देश में खेल का स्तर और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है, ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। हाल ही में जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ सर, हमने देखा वहां पे इतिहास में पहली बार हमें 7 मेडल्स मिले हैं। बर्मिंघम में अभी जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं वहां पे 10 से ज़्यादा मेडल्स हमने पाए हैं। पैरा ओलंपिक्स में इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल्स हमने पाए हैं। और इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ सर, सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है, मैं समझता हूं। हमारे सभी खेल मंत्री, अनुराग जी ठाकुर हो, रघुवेंद्र राठौर जी हो, किरेन रिजिजू हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में इन्होंने जो काम किया है, खेलो इंडिया जैसा प्रोग्राम, साई सेंटर जैसे जो सेंटर्स अभी देश भर में लागू किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण स्तर का टैलेंट ढूंढा जा रहा है। सर, मुझे याद है 2015-16 में जब मैं लोकसभा में था, स्पोर्ट्स बिल वहां पे लाया गया था, तब मैं वहां पे खुद बोला था स्पोर्ट्स बिल पे, ये आज का युवा स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। पेरेंट्स उसको स्पोर्ट्स में जाने की अनुमति नहीं दे रहे क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि स्पोर्ट्स से उसका घर चलेगा, स्पोर्ट्स से उसके घर में पैसा आएगा, वो अपनी रोजी रोटी कमा पाएगा, इसका भरोसा पेरेंट्स को नहीं है, इसलिए पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन आज की स्थिति क्या है सर? आज साई सेंटर्स हो, खेलो इंडिया के प्रोग्राम के माध्यम से आप देखेंगे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ग्रामीण स्तर के लोगों को मिल रहा है। आज प्रो कबड्डी लीग सर, मेरे कोल्हापुर का एक बच्चा 1.5 करोड़ रुपए उसको कबड्डी प्रो लीग में आज एक बच्चे को साल में मिल रहा है सर। अच्छी कीमत आज सालाना उनको मिल रही है। कुश्ती की आज प्रतियोगिता हो रही है सर, 50-50 लाख का इनाम आज बच्चों को मिल रहा है। तो मैं केंद्र सरकार को सराहना चाहता हूं कि उनकी प्रयास से आज इन स्पोर्ट्स पर्सन को ज्यादा आमदनी हो रही है। उनके खुराक की चिंता हमको होती थी सर पहले, लेकिन आज वो चिंता नहीं हो रही है क्योंकि ग्रामीण स्तर से, छोटे छोटे घरों से, ये सब साधारण घरों से बच्चे आते हैं, उनको आज ये अच्छे तरह से पैसा मिल रहा है। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, 65% हमारे देश के युवा है और ये युवा कल्चर स्पोर्ट्स कल्चर बनने जा रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। मैंने जैसे कहा सर, इनाम ज्यादा मिल रहा है, इसलिए शॉर्टकट्स के इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि स्तर बढ़ रहे हैं, मेडल्स बढ़ रहे हैं, तो डोपिंग के केसेस भी बढ़ रहे हैं सर। डोपिंग के मामले में वाडा ने जो 2019 में जो एक सर्वे किया था,
उसमें जो उल्लंघन के मामले आए थे उसमें भारत सबसे आगे था सर। 2019 में जो सर्वेक्षण किया था 4004 केसेस भारत के जो टेस्ट किए गए थे उसमें सबसे ज्यादा 225 लोग बाधित पाए गए थे। यूएसए के जो 11,213 लोगों का टेस्टिंग किया गया था उनमें सिर्फ 194 लोगों को बाधित पाया गया था। रशिया के 9,516 लोगों को टेस्टिंग किया गया था, उसमें से सिर्फ 85 लोगों को बाधित पाया गया था। मतलब इंडिया के सबसे ज्यादा बाधित पाए गए थे। इसमें अगर एनालिसिस किया जाए तो बॉडी बिल्डिंग के 22% लोग थे, साइकिलिंग के 14% लोग थे, एथलेटिक्स के 18% लोग थे और वेट लिफ्टिंग के 13% लोग थे सर। इसे हमें बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो लोग आजकल जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ये बाजार में बहुत सीधी तरीके से मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं और ये देने वाले और कोई नहीं है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं, हमारे जो मसाज करने वाले लोग हैं, उन्हीं से ही मिलता है। जो मसाज करने वाला था वो बोलता है सर ये दूसरा वाला एथलीट ये ले रहा है, आपको ये लेना चाहिए, ये दवाई ले रही है, ऑर्गेनिक दवाई है, आप लेनी चाहिए। ये बहुत सरल तरीके से मिलते हैं और उसका एक नया नाम भी आया, ऑर्गेनिक दवाई है, ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है और इसी के नाम पे ये कालाबाजारी होती है और उसको एथलीट को या उसको पता भी नहीं चलता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ सर मंत्री जी हमें कोचेस को भी, टीम स्टाफ को भी, डॉक्टर्स को, चिकित्सक को और मसाजर्स को भी शिक्षा और सूचना देने की आवश्यकता है सर, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ाओं में सहभाग लेते हैं, जैसे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड गेम्स हो, जैसे अभी जितने भी स्पर्धाएं हो रही हैं, अगर हम उनमें सहभाग लेते हैं तो उनके कानून हमें मालूम होने चाहिए। ये सभी कंपटीशन सर वाडा के नियमों के अधीन चलते हैं और हमें उनके नियम मालूम होने चाहिए। 4 साल में एक बार ये स्पर्धाएं होती है, इसके लिए हम, हमारे बच्चे, हमारे एथलीट्स, हमारे स्पर्धक कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन में उनका इवेंट होता है, एक मौका उनको मिलता है और उस मौके के बाद अगर वो डोपिंग टेस्ट में जाते हैं तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है सर। और अगर वो पाए जाते हैं तो उनको मेडल छीन लिए जाते हैं, उनकी ट्रॉफी छीन ली जाती है, उनके सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, उनका परिवार बिखर जाता है सर। और इसलिए जब वो पॉजिटिव होते हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनकी गांव में बदनामी होती है, उनके देश की भी बदनामी होती है। तो आगे जाके उनको किसी और प्रतियोगिता में सहभाग भी लेने को नहीं मिलता है सर। ये उसकी छोटी सी गलती उसकी जिंदगी तबाह कर सकती है। ये ट्रेनिंग के दौरान भी हो सकता है सर। जो सप्लीमेंट मैंने इसको बताया कि जो सप्लीमेंट मिलते हैं उस पर बहुत आकर्षक एडवर्टीजमेंट होता है सर। अगर आप ये सप्लीमेंट लेते हो तो आपका बाइसेप 24 इंच का हो जाएगा, आप सप्लीमेंट लेते हो तो आपके 6 पैक्स ऐप हो जाएंगे। ये सारे सप्लीमेंट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और अननोइंगली ये हो सकता है, उस पर लिखा होता है वाडा अप्रूव्ड होता है, नाडा अप्रूव्ड होता है, तो इस पे भी मंत्री जी ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं, क्योंकि ये सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। इसमें वेट गेन का भी एडवर्टाइजमेंट होता है। एनर्जी ड्रिंक्स हमारे बच्चे लेते हैं क्योंकि उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस पे ध्यान देने की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं कि ये कोई एथलीट जानबूझकर या कोई स्पर्धक जानबूझकर नहीं लेता, इसे धोखे से भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें राजनीति भी होती है। राजनीति सिर्फ हमारे इसमें नहीं होती, खेल में भी बहुत राजनीति होती है, इसे भी हमें समझने की जरूरत होती है। और इसलिए इस बिल में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि उसे अगर धोखे से कुछ दिया जाता है तो उसे अपील करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत खान पान पे बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। मैं सर स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं कोल्हापुर से आता हूं। हमारे यहाँ पे कुश्ती का, सभी खेलों में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा कल्चर है सर। आपको याद होगा, सबको मालूम होगा, कोल्हापुर एक ऐसा गांव है, भारत को देश का पहला ओलंपिक मेडल 1952 में जो पहला ओलंपिक मेडल मिला था वो हमारे खाशाबाज यादव जी ने लाया था, वो कोल्हापुर के थे सर। और अभी भी कई सारे पहलवानों का नाम है, आपने सुना होगा, दादू चौगुले जी है, डबल हिंद केसरी थे, श्रीपति खंजनारे जी, आंदलकर पहलवान, बिराजदार जी, यहाँ पे हरियाणा के कई पहलवानों के नाम लिए थे। तो हमें भी बहुत गर्व है हमारे कोल्हापुर के पहलवानों का सर। तो मेरे पिताजी भी बहुत बड़े पहलवान थे सर, भीमराव माडिक पहलवान थे और लक्ष्मण वडार थे। मेरा बेटा सर, छोटा बेटा है मेरा, कृष्णराज माडिक, हमारे खेल मंत्री जी जानते हैं, वो वर्ल्ड फार्मूला 3 वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है सर।
फॉर्मूला 3 वर्ल्ड चैंपियन, उसने हमारा लोकसभा में उसका भी जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने किया था सर। तो हमारा कोल्हापुर में भी क्रीड़ा का बहुत बड़ा कल्चर है। हमारे वीर धवल खड़े स्विमिंग में सर वो ओलंपिक जा चुके हैं, हमारी तेजस्विनी सावंत शूटिंग में ओलंपिक जा चुकी है, राधिका बराली शूटिंग में ओलंपिक जा चुकी है। देख बड़ा स्पोर्ट्स कल्चर है। मैं मंत्री से डिमांड करता हूं कि ये छोटे छोटे घरों में आते हैं तो स्पोर्ट्स बजट इसमें बढ़ना चाहिए, मैं डिमांड करता हूं सर। और मैं कुछ सुझाव इस माध्यम में बढ़ा रहे, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैं ये डिमांड करना, कुछ सुझाव देना चाहता हूं सर कि इसके आपको इस बिल के द्वारा अवेयरनेस करने की जरूरत है सर, क्योंकि इसका अवेयरनेस स्कूल स्तर पे होना चाहिए। मैं खुद 7 संगठनों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं सर। मैं कबड्डी, पेटेंक्यू, फेंसिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग सभी एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूं। मैं खेल को बढ़ावा देता हूं और ये एकेडमिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे, जिला लेवल पे, जैसे मैंने बताया आपको, फिजियोथेरेपिस्ट को और डॉक्टर्स को सब में इस पे अवेयरनेस करने की जरूरत है। जैसे बताया गया कि एशिया में 6 लैब है, हमारे यहाँ पे लैब्स, आधुनिक लैब बनाने की और जरूरत है। अपील पैनल जो होगा, जब भी कोई बच्चा अपील करता है, जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक उसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसके बाद उसको बैन हमेशा के लिए ना करें, उसको फिर से दोबारा खेलने का मौका दिया जाए। जो अध्यक्ष होने चाहिए वो मुझे लगता है कोई रिटायर्ड जज हो जो थोड़े से बायस ना हो, फिर उपाध्यक्ष भी होने चाहिए, वो भी कोई कानूनी विशेषज्ञ होने चाहिए। जो सदस्य उनमें होने चाहिए वो सीनियर डॉक्टर्स या रिटायर्ड एथलीट्स होने चाहिए। ये मैं मानता हूँ। ये सुझाव मैं इस माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद सर। मैं भी खुद एक नेशनल रेसलर रह चुका हूँ, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ सर। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद धनंजय जी। माननीय मंत्री जी आपका। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी, माननीय डिप्टी चेयरमैन सर। मैं सबसे पहले तो नेशनल एंटी डोपिंग बिल पर चर्चा लेने में जो शामिल माननीय सांसद हुए, जिन्होंने भाग लिया, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, जनरल वत्स जी, NR इलेंगो जी, शांतनु सेन जी, अयोध्याराम रेड्डी जी, TR सुरेश रेड्डी जी, जॉन ब्रिटोस, संजय सिंह जी, डॉक्टर फौजिया खान जी, श्री GK वासन जी, अब्दुल वाहब जी, के रविंद्र कुमार जी, थम्बी दुरई जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, श्री अमर पटनायक जी, श्री विनय विश्वम जी, श्री फैंगन कौनियाक जी, श्री राम जी, मौसम नूर जी, वीरेंद्र प्रसाद भैसिया जी, धनंजय महादिक जी एवं अन्य। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इस बिल का समर्थन किया है और बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। डिप्टी चेयरमैन सर, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन जो एंटी डोपिंग स्पोर्ट्स पर हुई थी, ये 2003 में हुई थी, जिसको भारत ने सहमति जताई। और यूनेस्को की इंटरनेशनल कन्वेंशन जो डोपिंग के विषय को लेकर थी, डोपिंग इन स्पोर्ट को लेकर थी 2005 में, उसके हम सिग्नेटरी हैं। और 2007 में हमने इसको रेटिफाई करने का काम किया था नवंबर में। इसके बाद पिछली बार जब कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए, उससे पहले यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बने, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब की स्थापना हुई और लगातार कई वर्षों तक इस पे काम भी हुआ। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी बने, हमारे यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया उसको हो, कोई एक्ट यहाँ पर बने, उसकी एक कमी देखने को मिलती थी। जबकि दुनिया के 30 राज्यों में 30 देशों में इसको पूरा किया गया था। भारत आज जब राज्यसभा में भी आप सबके सहयोग से, आम सहमति से, पूर्ण सहमति से आपके पास होगा, तो भारत भी उन देशों में दुनिया भर में आएगा जहां पर इसको स्टैट्यूटरी संविधान यहां पर बन पाएगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता इस बात की भी है कि जब लोकसभा में इसको लेकर आए और सदन के सदस्यों ने वहां पर कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, पिछले साल दिसंबर में हमने इसको भेजा। मैं आभार प्रकट करता हूं विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी और सारे कमेटी मेंबर्स का।
मात्र 3 महीनों के अंदर कमेटी ने बहुत विस्तार पे इससे चर्चा करके बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और हमने अधिकतर सुझाव, मैं कहूँगा लगभग सारे ही सुझावों को हमने इसमें शामिल करने का काम किया है। तो मैं कमेटी के सदस्यों का भी यहाँ पर आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर, शुरुआत में जहाँ एक और माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने विषय को रखते हुए बहुत सारी बातें यहाँ पर की, उसमें बाद में आऊँगा, लेकिन कहते शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। आप स्वयं एक खिलाड़ी हैं, खेल प्रशंसक और खेल प्रमोटर भी हैं, और ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पर खिलाड़ी भी आते हैं, और हर सरकार ने एक के बाद दूसरी सरकार ने लगातार अच्छा काम करने का काम खेलों के प्रति किया है। और यही कारण है कि हरियाणा की भागीदारी देश के मेडल जीतने में बहुत अच्छी रही है। उसके लिए जहाँ एक और हरियाणा की सरकार, हरियाणा राज्य, हरियाणा के खिलाड़ी, आप सब उसके बधाई के पात्र हैं। वहीं पर बाकी राज्यों को भी इससे सीखने का अवसर मिलता है। खेल राज्य का विषय है। स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट and states have to play a very important role in the sport, in creating sports infrastructure. At the same time, not only to create the facilities but also to promote the sports person and create jobs for them also. I'll touch those points a little later, but I'll come to what has been done in the past few years. I would like to throw some light on that. Sir, क्योंकि नाडा की बात जब यहाँ पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात की गई, भारत आज ऐसी स्थिति में है कि कॉमनवेल्थ खेल के बाद जब कॉमनवेल्थ गेम्स का यहाँ पर आयोजन हुआ, उसके बाद कुछ और बड़े इवेंट्स का आयोजन हुआ। मैं आज की अगर बात करूँ तो भारत जहाँ से चेस की शुरुआत हुई, शतरंज के खेल की शुरुआत हुई, यहाँ से वो पूरी दुनिया भर में गया, लेकिन चेस ओलंपियाड कभी भारत में नहीं हुआ। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दुनिया के 187 देश भाग ले रहे हैं और चेस ओलंपियाड 44वां चेस ओलंपियाड भारत में महाबलीपुरम में हो रहा है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसकी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, चेन्नई में जाकर वहां पर की। और जो वहां पर एक पूरा वातावरण खड़ा हुआ है चेस को लेकर। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां पर बहुत बड़ा योगदान उनका चेस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम चेस की बड़ी उपलब्धियों में बात करें, उसमें तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और मैं तमिलनाडु को उसके लिए बधाई भी देना चाहता हूं। एक के बाद दूसरे खिलाड़ी, और जब यहाँ पर भी दिल्ली में हमने चेस ओलंपियाड की पहली टॉर्च रिले हुई, ये आज तक कभी हुई नहीं थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी फिडे के प्रेसिडेंट आर्काडी द्वारकोविच से बात की, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने भी बात की, और हमने देश में प्रथा शुरू की। दुनिया भर के लिए अगर पहली टॉर्च रिले कहीं पर हुई है चेस ओलंपियाड की, तो वो भी भारत में ही, दिल्ली से हमने उसकी शुरुआत की। और सर, देश के 75 ऐसी लोकेशंस पर गए, क्योंकि हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, ताकि चेस ओलंपियाड और चेस के खेल को लेकर जागरूकता भी हो। और बहुत सफल ये कार्यक्रम हुआ। 27,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये सफ़र हुआ है और लाखों लोग इसके साथ जुड़े। और जब महाबलीपुरम में टॉर्च वापस पहुंची, यहाँ पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये टॉर्च रिले शुरू हुई तो किसको दी सर? 5 बार के जो विश्व विजेता है, कौन है? विश्वनाथ आनंद, उनको दी। और उनको लेकर जब लाल किले पर अगले दिन गई, उसके बाद पूरे देश भर में गई, तो अंतिम दिन फिर विश्वनाथ आनंद जी ने आकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को आकर टॉर्च को जाकर वहां पर सर वापस सौंपा, और 2 युवा खिलाड़ियों ने उसको वहां पर जाकर स्थापित किया। सर, मेरा कहने का मतलब इसके पीछे केवल एक है कि भारत बड़े आयोजन कर रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले 2017 में फुटबॉल का अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ, बहुत शानदार सफल आयोजन हुआ, और AFC फीफा ने अगले आयोजन की जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर दी। और इसी साल हम गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप अक्टूबर में करवाने जा रहे हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं।
डोप टेस्टिंग लैब बनाना और फिर उसकी क्षमता को बढ़ाना ये बहुत आवश्यक हो गया था। आज हमारी क्षमता लगभग 6000 टेस्ट साल में करने की है, लेकिन अगर कोई बड़ा चैंपियनशिप यहाँ पर करवानी हो तो लगभग 10,000 टेस्ट एक महीने में करने की क्षमता को करना होगा सर। तो उसके लिए कहीं ना कहीं देश में कानून भी हो और व्यवस्था भी खड़ी हो, उतने साइंटिस्ट हो, उतने लैब टेक्नीशियंस हो और उतनी डोप टेस्टिंग लैब्स हमारे पूरे देश भर में खड़ी हो सके। उसके विस्तार में मैं जाऊंगा आपके पूरे आते हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आपने बात की, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की। सर, आपदा का समय था, बहुत सारे आयोजन देश भर में नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मुझे इस सदन को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जब हमने बेंगलुरु में की तो कल्पना से ज़्यादा वहाँ पर एथलीट्स आए जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के थे। लगभग 5000 से ज़्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स ने वहाँ पर आकर भाग लिया। बहुत सफल आयोजन सर वहाँ पर हुआ। देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने आई, कोई पंजाब से थी, कोई हरियाणा से थी, कोई महाराष्ट्र से थी और बहुत सफल उन्होंने प्रदर्शन वहाँ पर किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहीं और नहीं, हरियाणा में ही उसका पंचकुला और बाकी ऐसे 5-6 स्थानों पर उसका आयोजन हुआ और लगभग 8500 से ज़्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स ने उसके आकर भाग लिया। और सर 12 नेशनल रिकॉर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टूटे। जिन 12 रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम उसमें से 11 लड़कियों ने किया है, यानी कि नए 11 नेशनल रिकॉर्ड बने तो लड़कियों ने बनाने का वो काम किया है। तो सर आयोजन एक के बाद दूसरे हो रहे हैं, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में ट्रेडिशनल गेम्स को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया सर। योगासना की बात करें, थांगटा की बात करें, कलारीपट्टू की बात करें या फिर गटका की बात करें, मलखम की बात करें, इन 5 गेमों को वहाँ पर लाया गया सर और इतना बड़ा आकर्षण का केंद्र ये बने हैं, ये शायद पहले किसी ने कल्पना नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी, इसको शामिल किया गया और बहुत सफलता मिली है ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल करके। आपके भी कोई और सुझाव हों, आपके राज्यों में, देश के अलग हिस्सों में ऐसे ट्रेडिशनल गेम्स होते हों तो कृपया करके आप उसका सुझाव भी दीजिए। हम भविष्य में उनको भी शामिल करने का प्रयास समय समय पर अगर कभी भी होगा तो करने का करेंगे। सर, माननीय सदस्यों ने बिल्कुल ठीक कुछ विषय उठाए भी कि NDTL हमारी लैब की सस्पेंशन हो गई थी और मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में भी कहा कई कारण उसके रहे सर। वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों में बहुत अंतर है। वेट लिफ्टिंग जहां एक और ओलंपिक स्पोर्ट है, हमें मेडल भी आते हैं। मीराबाई चानू ने ओलंपिक्स मेडल जब जिताने का काम हुआ सर तो एक बेटी ने भारत को पहला मेडल भी जिताया, वो भी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जिताने का काम किया था। और अब भी कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम मीराबाई चानू ने किया। सर, मैं अंतर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ जब बॉडी बिल्डिंग वालों के टेस्ट ज्यादा हो गए और उसको भी रिकॉर्डिंग कर करके जैसे डाला गया तो उसके कारण भी देश की छवि खराब हुई। एक विषय यहां पर जो और आया जिसको मैं आगे आके फिर आपके टच करूंगा, ऑफ द शेल्फ जो आपको प्रोटीन पाउडर्स और बाकी मिलते हैं उसका नुकसान भी क्या होता है, उसको भी एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग इसको भी लेते हैं। सर, हमने प्रयास किए और जब मुझे जिम्मेदारी भी मिली मुझे लगा भी कि ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जब हम किसी एक टेस्ट को कराने के लिए यहाँ से सैंपल बेल्जियम भेजते हैं सर, उसकी कॉस्ट देश से 3 गुना ज़्यादा आती है। देश को नुकसान भी होता है और टेस्टिंग जो देश में हो सकती है वो भी किसी दूसरे के हाथ में पहुंच जाती है। आपदा के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक कल्पना की थी, ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो या नेशनल एंटी डोपिंग, ये जो हमारी टेस्टिंग लैब है NDTL नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब जो हम बनाई है सर, हमने इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम भी किया है। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा भी करेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम एक ही लैब तक सीमित नहीं रहेंगे, हम और लैब को स्थापना करने का काम भी भविष्य में करने वाले हैं। एक लैब को स्थापित करने में लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। कई बार तो एक एक मशीन भी 8 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़ ऐसे आती है और
साइंटिस्ट की इसमें सर आवश्यकता पड़ती है। एक चैलेंज ये भी है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं कई बार विदेशों में भी चले जाते हैं, कई बार अलग अलग और क्षेत्रों में वो काम करना शुरू करते हैं, तो उनको होल्ड करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन भारत में अलग अलग देशों के सैंपल भी हम यहाँ पर टेस्ट करने की शुरुआत हमने की। 16 देशों के सैंपल की टेस्टिंग भी करते हैं और भविष्य में भारत हब बने टेस्टिंग का, इस दिशा में हम जाएंगे। केवल देश तक ही सीमित नहीं होंगे, दुनिया भर के देशों का, क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं। कम खर्चे पर कम समय में हम टेस्टिंग करके ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर के देशों को दे सकें, उस दिशा में सर हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब भी हम कोई कानून बनाएं तो आपने कंसल्टेंसी किससे की? क्या आपने देश के लोगों से पूछा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से पूछा, राज्यों की स्पोर्ट्स एसोसिएशन से पूछा, खिलाड़ियों से पूछा, माननीय सांसदों से पूछा, या देश में जो भी खेल संघों से जुड़े हैं क्या उससे पूछा, या यूनेस्को के जो गाइडलाइंस है क्या आपने उसको शामिल किया, या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसकी गाइडलाइंस है उसको लागू किया? सर मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और ये बताना भी चाहता हूं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भी 2 बार हमें जो सुझाव दिए उनको भी शामिल किया। यूनेस्को का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसमें भी जो कहा गया उसको भी शामिल किया। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से लेकर जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सर जितने भी यहाँ पर सुझाव आए, हमने सबको शामिल करके आपके सामने बिल लाने का काम किया है और लोकसभा में भी इसको आम सहमति के साथ पूरे समर्थन के साथ पास किया गया। मुझे पूर्ण आशा है जैसा आपने समर्थन किया आगे भी आप इसको पूर्ण सहमति से पास भी करेंगे। सर इसके होने के बाद क्या होगा? जो दुनिया के बड़े देश हैं, यूएस, चाइना, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ऐसे गिने चुने देशों में भारत का नाम भी आएगा, जिसका अपना कानून होगा, अपना एक्ट होगा और अपनी डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी भी देश में स्थापित होगी और आने वाले समय में देश के अलग अलग कोनों में भी होगी। इससे हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है हम इसको और मजबूत करने वाले हैं ताकि यहीं पर टेस्टिंग भी करें। और जैसा मैंने पहले कहा, आज हम मात्र 6000 सैंपल लेकर टेस्ट पूरे साल भर में कर सकते हैं। भविष्य में इसको हम कई गुना और बढ़ाने का काम भी करेंगे और इस सब कॉन्टिनेंट में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में हम यहां पर खड़े होंगे। सर कुछ बातें यहां पर कही गई जो दीपेंद्र जी ने भी शुरू में कहा कि माइनर एथलीट्स को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। जो ओरिजिनल बिल था उसमें कमी थी, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सर जब ये गया तो वहां पर उन्होंने बड़े विस्तार में कमेटी ने कहा कि आपको माइनर एथलीट्स को, इसको प्रोटेक्टिव एथलीट्स को लेना चाहिए। तो प्रोटेक्टेड पर्सन्स की जो हमने कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट की है उसमें कौन कौन आता है? सर ये स्पेशल प्रोविजन हमने इसमें ऐड किया है जिसमें माइनर एथलीट्स इसको नाम यहाँ पर दिया गया। रूल्स में इसको समय समय पर आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आज 16 साल है वाडा के अनुसार, तो कल को वाडा अगर 15 साल कर देता है, 14 साल करता है, या हमें लगता है कि इसको उम्र को बदलना है, तो रूल्स को उसमें हम बदल सकें, बार बार पार्लियामेंट उसमें आने की जरूरत ना पड़े, तो उसको हमने उसमें करने का प्रावधान यहाँ पर कर दिया है। इसी तरह से रिक्रिएशनल एथलीट्स उसको भी यहाँ पे रखा गया है और एथलीट्स विद द डिसेबिलिटीज ये प्रोटेक्टेड पर्सन में आएंगे ताकि इसके कारण आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना आए और इसमें रिलैक्सेशन देने का सर हमने काम किया है। दूसरा, प्रोटेक्टेड पर्सन वाले में 3 कैटेगरीज आएंगी, माइनर एथलीट्स, रिक्रिएशनल एथलीट्स और एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज। तो तीनों को हमने उसमें कवर कर दिया है। सर एक और प्रश्न दीपेंद्र जी ने यहाँ का पूछा कि फिक्स मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल जो लेने की बात कही। सर इसमें हमने किया ही है कि जो देश भर में जितने टूर्नामेंट्स हमारे होते हैं, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बाकी हों, हम उसमें प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जो स्टेट लेवल पर हाई रिस्क डिसिप्लिन्स हैं उसको लेकर भी हमने जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार टेस्टिंग करेंगे ताकि वो भी हो। लेकिन एक बात तो मैं सदन को बताना चाहता हूं, हमने यहीं तक नहीं रुके। हमने इससे पहले भी बहुत सारे जागरूकता अभियान हमने पूरे देश भर में चलाए
और उसकी कुछ जानकारी मैं आप सबके सामने देना चाहता हूं, क्योंकि इस बिल के पास होने से एंटी डोपिंग की अवेयरनेस, एजुकेशन और रिसर्च फैसिलिटीज इसमें वृद्धि होगी। और सर, नाडा और एनडीटीएल ने पिछले 1 साल में क्या किया, मैं उस पर थोड़ी जानकारी दे दूं ताकि सबका वो भी पता चलेगा हम अभी क्या कर रहे हैं। नाडा ने 100 एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस वर्कशॉप हाइब्रिड मोड में, क्योंकि कोविड चल रहा था, हाइब्रिड मोड में की, जहां पे एथलीट और एथलीट सपोर्ट पर्सनल इन दोनों को ही जानकारी उनको दी। और इसके अलावा जब हमने नाडा ने तीसरा फंड अप्रूवल कमेटी यहाँ पर की और सेकंड मीटिंग जो COP8 ब्यूरो की जो यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग के अंतर्गत आती है सर, उसमें हमने ना केवल होस्ट किया बल्कि मुझको सदन को बताते हुए प्रसन्नता भी होती है कि 1 साल पहले जहां हम सस्पेंडेड हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, इस बार जब हमने होस्ट किया तो इंडिया को फंड अप्रूवल कमेटी का चेयरपर्सन भी चुना गया और मेंबर भी चुना गया ब्यूरो का। ये 1 साल में हमने सब कुछ किया है। और जब आप ये कानून आज बनाने जा रहे हैं तो इसके बाद भी दुनिया भर के देशों में और वाडा में एक संदेश स्पष्ट जाएगा कि भारत खेल, खिलाड़ियों और डोपिंग को लेकर बहुत गंभीर है। ये एक बहुत बड़ा संदेश आज सदन यहां से पूरी दुनिया भर में देने वाला है। सर, नाडा ने सक्सेसफुली 157 लीगल हियरिंग की और एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल और एंटी डोपिंग अपील पैनल ने 87 ऑर्डर भी इशू किए हैं इसके। सर, यही नहीं, FSSAI has issued regulations for mandatory testing of dietary supplements, but no laboratory under the government is doing such testing. Hence, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। ऑर्डर्स तो पास कर दिए लेकिन कोई टेस्टिंग ऐसी करने वाली लैब नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने सर एक कदम और आगे जाकर जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गुजरात में, हमने उसके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। वहाँ पर वो लैब भी स्थापित करेंगे और ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है इसकी टेस्टिंग को हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से करने की शुरुआत करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कदम इस दिशा में हम उठाने जा रहे हैं। सर, जो एग्जिस्टिंग गैप है स्टैंडर्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स का और नॉन स्टैंडर्ड वंस का, इसको भी हम खत्म करेंगे। जहां एक और टेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, दूसरा जागरूकता अभियान भी देश भर में और तेजी के साथ लेकर जाएंगे। सर, नाडा के माध्यम से जब हमने डीजी नाडा की नियुक्ति की, अब एक प्रश्न बीच में आया था कि आखिरकार डीजी नाडा की नियुक्ति कैसे की, ऑफिशियल्स की नियुक्ति सरकार ने कैसे की। सर, मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो वाडा की गाइडलाइंस हैं वो अनुमति देती हैं कि सरकार या खेल मंत्रालय इन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर बाकी देशों में भी इनकी नियुक्ति की गई है। और एक विश्वास मैं आपको और दिलाना चाहता हूं, दे विल वर्क एट आर्म्स लेंथ। ये ऑटोनोमस बॉडी है, यहां पर सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। खेल और खिलाड़ियों के भविष्य की बात है, हम इसके बारे में बहुत गंभीर हैं और इसको मजबूत ही करेंगे, दखल अंदाजी कोई नहीं होगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। सर, नाडा ने एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस टूल किट को भी डेवलप किया है सर, और इसके अलग अलग स्टेक होल्डर्स को शामिल करके किया है। ना केवल इसको फिजिकल तौर पे जाके करने की सर आवश्यकता होगी, साथ ही साथ डिजिटल भी इसकी हमने वो प्रावधान किए हैं। सर, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग यहाँ पर किया गया है। और जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, हमने वहाँ पे एथलीट्स को अवेयरनेस भी की, सेंसिटाइज भी किया, वहाँ पर टेस्टिंग करने का काम भी किया और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, खिलाड़ियों को आकर उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के भी जानकारी दी। सर, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन ये एक प्रयास है डिपेंडेंसी मैनुअल सिस्टम्स पर कम करने की, और हम लगातार वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को भी बना रहे हैं। डिजिटल क्विज और एजुकेशनल रिसोर्सेज को भी तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो स्कूलों के बच्चे हैं वो चाहे फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, उनको भी जानकारी हो कि डोपिंग होता क्या है, क्या करने से आप फंस सकते हो। और सर, ये केवल अवेयरनेस की बात नहीं है, जैसा दीपेंद्र जी और कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि कुछ खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम से पहले पकड़े गए। सर, एक इंस्टेंस तो ऐसा है, एक खिलाड़ी की टेस्टिंग करनी थी जहां उसको
आपने जाके वेयर अबाउट क्लॉज इसमें एक होती है कि आपको बताना है आप कहां पर हो, उससे बचने का प्रयास कर रहे थे। एक जगह दूसरी जगह 1 महीना लटकाने के बाद जब उसका चेकअप हुआ सर, तो उसके बाद वो पॉजिटिव पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी पता है कि वो गलत करते हैं और बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर वो देश का नुकसान भी करते हैं, क्योंकि देश के टैक्स पेयर का पैसा चंद करोड़